नमस्कार। वर्ल्ड कप के इस महामुकाबले में आप सबका स्वागत है। गुगली है ये कार्यक्रम और एनडीटीवी और जियो पाकिस्तान दोनों चैनल हम लोग कोलैबोरेशन के साथ आपके साथ बेहद दिलचस्प खबरें, दोनों तरफ की बारीक बातों पर इस पूरे आधे घंटे पर चर्चा करेंगे। Hello and welcome to you all. It is the match that all of us have been waiting for in the subcontinent. India taking on Pakistan. That match will be played at the Narendra Modi Stadium in front of 132,000 spectators. But before that, we are counting down to that big match with our guests from across the border. This is a true India-Pakistan collaboration. We have former Pakistan cricketer Sikandar Bakht on the show. We also have senior Pakistan journalist Majid Bhatti with us. We will have Gursharan Singh, former Indian cricketer, with us as well. But before we begin to talk about those stories that regale us, let's go over to my colleague Osama Shah, who's standing by at the Ahmedabad Cricket Stadium. Osama, tell us what's the buzz? ओसामा, कल 1,32,000 होंगे और आज से ही वहां पे लोग इकट्ठा हो गए हैं। बिल्कुल, as Rika was mentioning, there is a lot of buzz when it comes to the India-Pakistan match. It always is. और हम सुबह से जो है वो स्टेडियम के बाहर थे और बहुत सारे फैन से बात किया। बहुत सारे इनफैक्ट पाकिस्तान फैंस, एक दो पाकिस्तान फैंस थे जो यहाँ पे आए हुए हैं और उनसे भी बात किया। और सबका बेसिकली कहना ये है कि ये इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है जो अहमदाबाद में हो रहा है, ये बहुत ही एक्साइटिंग अफेयर है फॉर ऑल द फैंस, स्पेशली बिकॉज ये इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है इट्स ऑलवेज अ रेयरिटी एंड इट हैपन्स वंस इन अ ब्लू मून। तो जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कल जब पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस करने यहाँ आ रही थी तब भी पूरे रास्ते में जो है वो भीड़ एक तरह से जो है वो जमा हो रखी थी। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर तक दोनों तरफ रास्ते में जो है वो भीड़ जमा हो रखी थी। लोग झंडे लेकर, लोग टी शर्ट्स, जर्सीज पहन के पूरे रोड्स पे, स्टेडियम के बाहर, हर जगह जो है वो कलर आपको देखने को मिल रहा है। और सारे फैंस जो हैं वो इसी बात को लेके जो है वो एक्साइटेड हैं कि 14 तारीख को ये मैच होने वाला है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होने वाला है अहमदाबाद स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में ये मैच होने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जहां पे ये मैच हो रहा है। Osama, we'll really have to ask you about, these spectators who have not just booked out hotels because of the paucity of hotels. Apparently, the hospitals are also booked out now, and so many of them are coming there with their sleeping bags. Well, we were in fact talking to a couple of these people, these fans who have arrived in Ahmedabad today itself, and a lot of those people were basically mentioning about the accommodation situation, and a lot of them mentioned that they have not able to find any accommodation as of now. They will try and figure out a way to spend the night. But like you mentioned, we were also talking to a couple of hospitals who don't want to come on record and say this, but we talked to them and they have mentioned that a lot of tests have been booked on this day, this particular day, and a lot of people have booked these tests in a way so that they can spend the night and they have a place to stay. And that is what the situation looks like in terms of accommodation. A lot of people are finding it very difficult to find accommodation in hotels or guest house, etc. And is the reason why they are looking for alternatives. In fact, a lot of vans basically we've बिल्कुल। हम चलते अपने पाकिस्तान के खास मेहमानों के पास। सिकंदर बख्त और माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। सिकंदर बख्त साहब, आपको याद दिलाना चाहूँगा, आप 40 साल पहले इंडिया आए थे। आप बता रहे थे हमारे स्टूडियो से के पास ही आपका पुश्तैनी घर भी है जोरबाग में। आपने यहाँ पे 11 विकेट लिए थे दिल्ली में। तब से हालात बदल गए हैं, पिच बदल गई है, क्रिकेट बदल गई है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है वो बरकरार है। और जब हम बातें करते हैं वर्ल्ड कप की तो स्टैटिस्टिक्स एक आता है कि 7-0 से पाकिस्तान हारा है। ये पाकिस्तान में भी जो पुराने क्रिकेटर हैं उनको टीस देता है, दर्द को होता है इसका? नहीं, देखिए, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं इंडिया आऊं और मेरी वालदा भी मद्रास की रहने वाली हैं।
मैं मद्रास में, उनका जो घर था पुराना बिल्कुल स्टेडियम के सामने, बिल्कुल एक सड़क है बीच में, सिर्फ उनका घर जो पुराना वाला है। तो मेरा बड़ा दिल करता है, मगर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट वी कैन नॉट ट्रेवल टू इंडिया एज मच एज वी वांट टू डू दैट। और मेरा, जैसे मैंने आपको बताया, माय फादर इज फ्रॉम दिल्ली। हमारे मतलब एक यादें वहाँ पे, माय माय फूफी इज स्टिल लिविंग देयर इन दिल्ली, तो हमारी बड़ी यादें वाबस्ता हैं उससे और भारत में। और इसी तरह हम काफी ऐसे इंडियन फ्रेंड्स से मिलते हैं कि हु हैव बीन बोर्न इन पाकिस्तान, लिव्ड इन पाकिस्तान, सो इट्स अ म्यूचुअल थिंग। और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलते, हम एक दूसरे के साथ इतना नियत होना चाहिए। और यकीन करें, जो प्यार मोहब्बत इस वक्त पाकिस्तान टीम को भारत में मिल रही है, वही हालात हमारे साथ थे आज से 44 years back we are talking about when it was 1979 when we came to India, 45 years or 44 years back। इतनी ही मोहब्बत प्यार हमें भारत में मिली। मैंने जब भी भारत में ट्रैवल किया, मैंने जब भी आया हूँ टीवी के प्रोग्राम करने के लिए या क्रिकेट खेलने के लिए, मुझे कोई एक इंसिडेंट नहीं हुआ कि कभी किसी ने मुझसे कुछ कहा हो। दे ऑलवेज लव्ड अस। वो सेम गोस टू पाकिस्तानी क्राउड के, जब भी इंडियन टीम वहां आती है पाकिस्तान, यही मोहब्बत यही प्यार हम उनको देते हैं। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये हम आपस में नहीं खेलते, हमें खेलना चाहिए। सिकंदर जी, इतना ही हमारे लिए मेहमान नवाजी हुआ था हम जब 2003 में पाकिस्तान गए हुए थे, एंड दैट वाज परहैप्स द लास्ट टाइम दैट आई टॉट पाकिस्तान। बट टॉकिंग अबाउट द क्लैश दैट्स गोइंग टू हैपन राइट नाउ इन द वर्ल्ड कप, देयर इज वन नंबर that is significant, and that's number 7. Vimal mentioned about India being ahead 7-0. The other thing is Pakistan playing here after 7 years. Would you say then that this side, who doesn't have much of an opportunity, didn't have an opportunity, much of an exposure of playing in India, comes without a baggage, and that could be a definite advantage for them? No, advantage to you guys, because not a single player from Pakistan has played in India at all. So this is the first time everybody is going to play in India, and especially in a stadium where more than 100,000 people are going to watch them. India has the advantage. They played the game before, though it's their home ground, but they played against Afghanistan at Ahmedabad. They had the advantage of it to see the pitch, how the pitch is going to behave. Our boys, obviously, they will be a little bit of under pressure, little bit, but your team will be more under pressure because of the crowd, and they will be playing in front of the home crowd. So I think it will be going to be a very interesting game, and every cricketer, all the Pakistani cricketers are ready, and they are very excited to perform there in India, and that will be a great match, and I hope it's going to be a very interesting game. माजिद भट्टी साहब, आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। अभी जैसे हम लोग, मैं रिका बातें कर रहे थे कि बाबर आजम ये कह रही थी कि बड़ा स्पंकी कैरेक्टर है वो, उन्होंने कहा कि प्रेशर में नहीं है, लेकिन 1,32,000 जब दर्शक सामने हों और 12वां खिलाड़ी के रूप में आपके लिए काम करे, इंडिया के लिए, जैसे सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि एडेड एडवांटेज है। लेकिन पाकिस्तान में आवाम और जो वहाँ पे जो जर्नलिस्ट्स हैं या जो न्यूज़पेपर टेलीविज़न हैं, वो इसको कैसे पेंट करते हैं? क्योंकि क्या ये 7-0 का आंकड़ा माइंड में होता है या दबाव की बात होती है, क्योंकि प्लेयर्स इसको टोन डाउन करना चाहते हैं? देखिए विमल साहब, पाकिस्तान इंडिया मैच इज ऑलवेज स्पेशल। जितनी बार भी आप खेलेंगे, हर बार एक नया फ्लेवर आएगा। तो इस बार भी, चाहे सरहद के उस पार लोग इस मैच का जितनी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी अब आज शाम के बाद वीकेंड शुरू हो जाएगा, तो लोगों ने बड़ी तैयारियां की हुई हैं। बाबर आजम, नो डाउट बाबर आजम ने एक इंडिया के खिलाफ मैच विनिंग नॉक खेला था दुबई में T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन बाबर आजम से अब हमारे लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाबर आजम अगर क्रिकेटिंग ग्रेड्स में आना चाहते हैं तो इंडिया के खिलाफ उनको एक बड़ी इनिंग्स खेलनी है। जिस तरह जावेद मियांदाद ने जो शारजा में छक्का मारा था, वो 86 की बात है, लेकिन आज 2023 में लोग आज भी उसको याद करते हैं, या जावेद मियांदाद की और बहुत सारी इनिंग्स है। तो बाबर आजम मेरे ख्याल में वो 7-0 उनके जहन में डेफिनेटली होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया को थोड़ा सा प्रेशर इसलिए होगा कि होम टीम पर ज्यादा प्रेशर इसलिए होता है कि एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं। लेकिन विमल साहब, क्रिकेट से हटके मैं इससे पहले 9 बार इंडिया टूर कर चुका हूँ। मेरा थोड़ा सा वीजा
अभी डिले है, इंशाल्लाह 10वीं बार अगले 2-4 दिन में मैं भी इंडिया पहुंच जाऊंगा। मुझे भी बड़ी जबरदस्त इंडिया से जो मेरी पुरानी मेमोरीज हैं, वो मैं एक मेमोरी अहमदाबाद में मैं 2005 में जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, पाकिस्तान ने, इंजमाम ने सचिन को आखिरी गेंद पर चौका मारा और पाकिस्तान 3 विकेट से वो मैच जीत गया और 315 रन का टारगेट था, पाकिस्तान को चेस करना था। तो हम अहमदाबाद के जिस होटल में ठहरे हुए थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी साहब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। जब हम तीसरे या चौथे दिन चेकआउट कर रहे थे मैच के बाद, तो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन वालों ने होटल वालों से कहा हुआ था, ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो आए हुए हैं ये हमारे मेहमान हैं, और उस जमाने में 2005 में कोई 34-35 हजार का जो हमारा होटल का बिल था, उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, आप गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के मेहमान हैं। तो हम मीडिया पे देखते हैं, अखबारात में, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पे कि पता नहीं जंग होने जा रही है, लेकिन मेरे तो बहुत ज्यादा इंडिया में दोस्त हैं, वो जब पाकिस्तान आते हैं हमें तो कहीं भी ये महसूस नहीं होता कि हम किसी दूसरे देश में चले गए। मेरा ख्याल क्रिकेट जितनी दोनों मुल्कों के दरमियान होगी, वो प्रेशर भी कम होगा और लोग भी नॉर्मल हो जाएंगे। मेरे ख्याल में दोस्ती जो है उसको आगे आना चाहिए। क्रिकेट अगर दोनों देशों के दरमियान होगी, तो ये तो दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स कह चुके हैं कि अगर ये सीरीज शुरू हो गई तो फिर एशेज तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ इधर। अभी आपने वो जो 7 मैचेस का जिक्र किया है कि भारत जीता हुआ है, आप यकीन करें मेरे जहन में ही नहीं था। अभी आपने जिक्र किया तो ये बात मेरे जहन में आई है, और हम जब पब्लिक में जाते हैं तो वहां पर भी किसी को इस बात पे बिल्कुल जो है किसी का जहन ही नहीं जा रहा कि हम वाकई वर्ल्ड कप में 7 दफा भारत से हार चुके हैं। हमने कभी ना कभी तो जीतना है ना उनसे वर्ल्ड कप में, तो कोई इस बारे में सोच नहीं रहा। और मैं इस बात पे मुझे पक्का यकीन है कि पाकिस्तान की टीम के जहन में भी ये बात नहीं होगी, हर एक के जहन में ये बात है। हमारे साथ एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इंडिया से भी जुड़ रहे हैं, गुरशरण सर। और गुरशरण सर, आपका स्वागत है हमारे साथ। सिकंदर बख्श साहब है, आपके एरा के हैं, आप वेस्ट इंडीज में खेले थे। सिकंदर बख्श साहब के साथ शायद आपने खेला हो मैच, 1979 में आए थे, इंडिया में 11 विकेट इन्होंने लिया था। दिल्ली की मेमोरी इनकी बहुत ही जोरदार है, डेयरी में इनका घर भी है। नहीं, मैंने तो 81 में मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ था, बट मैंने वो कोटला में मैच देखा था जिसमें सिकंदर भाई ने आई थिंक 9 विकेट लिए थे। वो मैच मुझे अभी भी याद है, बहुत अच्छा मैच, बहुत जबरदस्त स्पेल था सिकंदर भाई का। और ये जो भी बातें हो रही हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान की ये सीरीज शुरू होती है तो फिर एशेज काफी पीछे छूट जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे दोनों देशों के बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान है, फास्ट बॉलर्स हैं, बट एट प्रेजेंट मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान की बैटिंग काफी मजबूत है उनकी। और मेरा ये मानना है कि जो भी टीम 11 से 40 ओवर के बीच में जो अच्छी बॉलिंग करेगी, जो मिडिल ओवर मुझे लगता है काफी क्रूशल होने वाले हैं, तो इसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इसमें भारत का थोड़ा पलड़ा भारी है। लेकिन ये क्रिकेट है, ये जो 7-0 की बात हो रही है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि 7-0 इंडिया जीता है, लेकिन क्रिकेट अभी भी 22 गज के बीच में खेली जाती है। 22 गज के बीच में जो भी उस दिन अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। और ये जो बात हो रही है कि 7-0 से जीती है इंडिया और उसका प्रेशर पड़ेगा पाकिस्तान पे, या इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट होके खेलेगी, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे होने वाला है। और 120 130 जो लोग देखने आएंगे, मुझे यही लगता है कि पिछले 30-40 साल में इससे बड़ा मुकाबला नहीं हुआ है। और जैसा अहमदाबाद का पिच है, जैसी विकेट है वहां पे, जैसी कंडीशंस हैं, मुझे लग रहा है कि काफी हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है। और मैं तो यही मैं बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कल का मैच देखने के लिए। Yes, there are big batters in both the sides. Gursharan ji and Sikandar ji, this question is to both of you. When you look at the clashes in world cricket today, would you say India versus Pakistan is bigger than the Ashes? Gursharan ji, may I start with you? आई थिंक दोनों में 19-20 का ही फर्क होगा। एशेज को भी बहुत वहां देखिएगा, एशेज में चाहे इंग्लैंड में हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, वो बहुत पूरा स्टेडियम फुल होता है टेस्ट मैचेस। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस भी जो होते हैं उसमें भी भरा होता है स्टेडियम। तो दोनों के दोनों मुकाबले अगर ज्यादा खेलेंगे आपस में, इंडिया पाकिस्तान अगर ज्यादा खेलेगी, तो मुझे लग रहा है कि दोनों सेम पे ही मैं कहूंगा। सिकंदर बख्श साहब, आपसे एक सवाल पूछना सिकंदर जी answer the question about Ashes? Yes, see, the Ashes has their own charm.
it must be very important for Australia and the English people. For us, India, Pakistan is bigger than anything. I think whenever India and Pakistan clash, either it's hockey, it's football, whatever, everybody looked at. So India, Pakistan is very special for us. For me, it's more than Ashes for me. So I believe that we should play on a regular basis. और गुलशन भाई ने जिस तरह बोला कि हमें जो जिस दिन अच्छा खेलता है, जिस दिन जो हम पहुंचेंगे अंदर, जो पहले 10 ओवर, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि जो पहले 10 ओवर है वो तो ठीक है, मगर 10 से लेकर जो 30 ओवर तक का मैच है ना, वो आज कल का मैच बनाएगा। अच्छा रिका, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि एशेज अगर आप इंडिया पाकिस्तान में करवाएंगे तो शायद स्टेडियम फुल नहीं होंगे। मैंने इंडिया पाकिस्तान के मैच तकरीबन दुनिया के सारे मुल्कों में कवर किए हैं, लेकिन हाउसफुल और इतनी डिमांड होती है जितनी पाकिस्तान और इंडिया में, तो मेरे ख्याल में एशेज से पाकिस्तान इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। ये सीरीज बहुत ऊपर है। बिल्कुल माजिद भट्टी साहब, मैं तो इसको मदर ऑफ ऑल क्रिकेट मैचेस कहता हूं। मतलब मैं जहां भी गया हूं, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो अंदर स्टेडियम में जाना, चाहे आपके पास कैसा भी पास हो, कोई भी हो, जाना डिफिकल्ट होता है। और जो जुनून बाहर दिखता है, जो पैशन दिखता है, वो मुझे कहीं और नहीं दिखता। अभी मैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल गया था ओवल में, वहां भी ये ऐसा नहीं दिखा। इंडिया पाकिस्तान होने पे बात अलग होती है। सिकंदर बाग साहब, जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होगा उसमें एक अहम कड़ी है, हमारी बैटिंग मजबूत है, आपकी बॉलिंग मजबूत है। शाहीन अफरीदी, क्योंकि आप आउटस्विंगर बॉलर थे, शाहीन अफरीदी अभी तक उस लय में दिखे नहीं। हालांकि बहुत क्रिकेट बदली है, लेकिन अगर आप उनको एक सलाह देना चाहें, क्योंकि हम लोग इसको डुअल के रूप में देख रहे हैं, रोहित शर्मा वर्सेस शाहीन अफरीदी, विराट कोहली वर्सेस हारिस राउफ, तो अगर शाहीन अफरीदी को आपके लिए कोई उनको सलाह देना चाहे। देखिए, मैं आज सुबह के प्रोग्राम में भी उनको ये सलाह दी थी कि ही इज ट्राइंग टू मच। वो अभी यंग है, अपकमिंग है, ही डजंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एज बोल्ट के पास है, बुमराह के पास है, स्टार्क के पास है, वो वाला एक्सपीरियंस ही डजंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। सो आई विल जस्ट गाइड हिम। मैंने उनको यही इत्तला दी है कि भाई आप ज्यादा ओवर एक्साइटेड होकर गेंद ना करें, आप अपने कॉन्सेंट्रेट करें। आप ये देख लें कि व्हाट इज द ट्रेंड इन इंडिया। द ट्रेंड इन इंडिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इज एवरीबॉडी स्कोरिंग रन्स, एवरीबॉडी इज गेटिंग हिट बाय द बैट्समैन। तो आप थोड़ी सी डिफेंसिव बॉलिंग करें। Don't go after the batsman. Initially, you can do that with the new ball, but later on, don't go after the batsman. आप wait करें और bowl defensively. ये मैंने उनको अपनी तरफ से सलाह दी है। I hope कि I'm sure, not hope, बल्कि I'm sure the coaches and people around him वो भी उनको यही सलाह दे रहे होंगे। Don't get excited. एक उन पे टैग लग गया है कि पहले ओवर में वो जरूर आउट कर देते हैं। जब वो आउट नहीं होता तो फिर वो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। तो उसको उन्होंने कवर करना है कि डजंट मैटर, अगर वो पहले इनिशियल स्पेल में ही डजंट टेक अ विकेट, देन ही शुड कूल डाउन। तो ये मेरा उनके लिए सलाह है। Majid ji, last time you came to India, the father-in-law of Afridi was the biggest hero. Now when you've sent a team to India, the son-in-law of Afridi is the biggest hero of Pakistan. While we end the show, I'll just have to ask you, what is that one weak link that in the Indian side that the Pakistanis will love to exploit? मेरा ख्याल में इंडिया का जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है, वो अगर शाहीन अफरीदी ऊपर से रन थ्रू कर दें, अदरवाइज इस इंडियन टीम में मेरा ख्याल में अगर कहीं पाकिस्तान को ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी तो जब इस बैटिंग ट्रैक पे इंडियन स्पिनर्स आएंगे। वो जो गुरशरण सिंह साहब कह रहे थे कि मिडिल ओवर्स में, तो मेरे ख्याल में वही इंडिया का वीक लिंक होगा कि मिडिल ओवर्स में अगर पाकिस्तान के बैट्समैन इंडियन स्पिन बॉलर्स पर हावी हो गए, अदरवाइज तो आप देखें ऊपर से। माजिद भट्टी साहब, हमारे पास थोड़ा वक्त की कमी है। उसामा, थैंक यू सो वेरी मच। गुरशरण सर, थैंक यू सो वेरी मच। सिकंदर बख्श साहब, बेहद शुक्रिया। माजिद भट्टी साहब, बेहद शुक्रिया। ये बातों का सिलसिला भारत पाकिस्तान के मैच हो तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। Thank you very much for joining us on the broadcast. Thank you so much.